Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our social science topic, that is chapter 17, Natural Vegetation, part 2. See, in part 1 we have discussed what is natural vegetation. We have seen the introduction of the chapter, as well as we have learned the types of natural vegetations, or I can say the importance of natural vegetations, right? And in types we have learned the numbers of forests which are present in India. In that we have seen many forests, right? Like evergreen forest or rainforest, right? Then we have gone through the deciduous forest, and also we have learned about the thorny forest and many more, right? And in that we have also discussed the distribution, that on what places we found such types of forest in India. Okay, and with distributions, with places, even we have learned what type of rainfall it requires. Okay, like evergreen forest requires around 200, more than 200 centimeters of rain. Okay, so this type of atmosphere, this type of rainy atmosphere, on which place we found in India, right? And we have also gone through the trees, what type of trees we found in such types of forest. Okay, so hope you are enjoying this topic a lot. And next thing, that natural vegetations plays a very important role, right? In, we can say that whatever problems we are facing, like pollution, the biggest problem of ours is pollution. Then the world is facing the problem of global warming. The only solution of all such issues, right, that is natural vegetation only, that is forestry areas. So further we learned about it, so let's start it now. Yes, we are on types of natural vegetations. We have already discussed the three types. That was the tropical evergreen forest or the rainforest, then deciduous forest and thorny forest. So the fourth one is temperate forest and grasslands, which usually found in Himalayan vegetation, which we also call Himalayan vegetations. So that's true that it's somewhere found on Himalayas. Okay, let's start it. A major characteristics of the coniferous forests is that the trees have conical shape. As you can see in the picture, conical shape is something like, we can say, a Christmas tree. ठीक है, क्रिसमस ट्री कैसा होता है, वैसा ही ये टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं इसके, और इसको कर्निफोरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट. So temperate forest or grasslands is also called coniferous forest. Don't get confused. ठीक है, usually ये conical shape में होते हैं. Their branches lean towards the surface so that the snow would easily slide down towards the land. See, whichever place which have a snow-clad atmosphere, right? जहाँ पे सबसे ज़्यादा snowfall होता है, जैसे शिमला, मनाली और any such place आप ले लो, वहाँ सब जगह you found such types of trees which have conical shape. इसका कारण ये है कि जब भी बर्फ गिरती है वहां पे, राइट? अगर हमारे जैसे अगर ट्रीज वहां पे हो, ओके, घने से ट्रीज हो, तो क्या होगा, बर्फ वहां फंसी रहेगी ट्रीज में, और ट्रीज में से बर्फ गिरेगी नहीं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रीज की लाइफ लॉन्ग काफी कम हो जाए. एंड दैट्स वाई कि कॉनिकल शेप ट्रीज में प्लस पॉइंट ये है कि बर्फ कभी ट्रीज पर टिकते नहीं है, वो तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही वहां से गिर जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए यूजुअली ऐसे स्नो क्लैड एटमॉस्फियर में, या जहां सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है, यू विल फाउंड such types of conical shaped trees. The branches lean towards, उसकी branches surface की तरह, जो जैसे मैंने कहा कि आपने क्रिसमस ट्री देखा है, राइट? और यू कैन सी इन द पिक्चर्स इवन कॉनिकल शेप में ही ये होता है. ओके, तो स्नो इजीली वहां से स्लाइड डाउन हो सके जमीन पर, इसलिए ये शेप में ही ट्रीज वहां ग्रो होते हैं. ट्री लीव्स आर लॉन्ग. ट्री के जो लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पॉइंटेड और स्टिकी होते हैं, जो ह्यूमिडिटी को कंजर्व करके रखते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी की कमी भी रहती है. ओके, तो वो ह्यूमिडिटी को बहुत लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करके रखते हैं. Now let's see the vegetation on Himalayas. Himalayas पर कैसा vegetation होता है, क्या height है, all such you can found a table here. First comes height.
हाइट है अगर 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ हिमालयस है, ठीक है, 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ हिमालयस तक जाते हैं, तो एरियल स्पैन कितना होगा? हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो ये कहाँ आया है? हिमालयस जो इसकी हाइट 1000 to 2000 मीटर्स तक का हिमालय हम लेते हैं, तो ये अवेलेबल है हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल और माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड में, ठीक है। फिर सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस में आ जाता है हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों पार्ट इसमें ही कंटिन्यू है, दैट इज हाइट में 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ हिमालयस और 1500 to 3000 मीटर्स ऑफ हिमालयस, ये दोनों ही एरिया यहाँ पे आ जाता है। फॉरेस्ट, कौन से टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं? तो फर्स्ट जो हमने देखा दैट इज हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स, वहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और उसमें ट्रीज कौन से होंगे? ओक, चेस्टनट और मेनी मोर वेजिटेशंस। अब सेकंड जो 1500 to 300 मीटर्स 3000 मीटर्स का जो हिमालयस है, वहां कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा? कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और वहां ट्रीज कौन से होंगे? पाइन, डियोडर, सिल्वरफिल, स्प्रूस। नेक्स्ट कम्स 3600 मीटर्स एंड मोर ऑफ हिमालयस, यानी अगर हम शुरुआत करें 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ हिमालयस, ये एकदम एकदम साउथ ऑफ हिमालयस है, यानी हिमालयस का एकदम नीचे का हिस्सा। फिर आता है 1500 to 3000 मीटर्स, यानी ये उस साउथ के ऊपर का हिस्सा, यानी ये 2000 मीटर्स के ऊपर का कुछ एक बीच का हिस्सा आ गया। और उसके बाद 3600 मीटर्स एंड मोर हिमालयस, यानी उसके बाद 3600 मीटर्स के ऊपर जितना भी है वो पूरा यहाँ आ गया। इसका एरियल स्पैन कितना होगा? हायर अल्टीट्यूड इन हिमालय एंड नियर स्नो लाइन, ये स्नो लाइन के एकदम करीब में होगा और ये सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा होगा, हाई अल्टीट्यूड। फॉरेस्ट कौन से टाइप के होंगे? अल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास, यहाँ ओवर स्नोफॉल होने की वजह से बहुत कम वीकेंड से वेजिटेशन होता है, तो यहाँ पे यूजुअली अल्पाइन और शॉर्ट ग्रास जैसे ही वेजिटेशन यू कैन फाउंड, ठीक है। ये टंड्रा रीजन में अवेलेबल है। टंड्रा जैसे हमने लास्ट चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का जो हमारा पोल का हिस्सा है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, दैट इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन और द टंड्रा जोन, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट जोन एवर। ओके, तो ये भी टंड्रा वेजिटेशन, यानी यहाँ ऐसे ही वेजिटेशन यू विल फाउंड जो ऐसे एक्सेसिव स्नो फॉल में या एक्सेसिव कोल्ड में भी टिके रह सके, ठीक है। यहाँ के ट्रीज में आप सिर्फ सिल्वर फिर और जूनिफर बिर्च, ये दो टाइप के ट्रीज ही देख सकते हो। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट शो ऑल सच टाइप्स ऑफ ट्रीज हियर, बट यू जस्ट गूगल इट आउट एंड फाइंड इट आउट व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर दिस। ओके, चलो फोर्थ टॉपिक हमने फिनिश किया। अब आता है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को यूजुअली मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। टाइडल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव्स इसलिए टाइडल या मैंग्रोव्स का मतलब होता है फुल ऑफ वाटर, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें सब जगह पानी ही पानी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। वो पानी में ही ट्रीज एंड ऑल सच वेजिटेशंस ग्रो होते हैं, फाइन। तो आपने ऐसे बहुत सारी आई कैन से कि हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा देखा होगा, एनाकोंडा एंड ऑल सच, कैसे पानी में ही सब कुछ होता है, तो दैट इज एक्चुअली मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। Tidal forests are located in the delta regions of rivers along the coast. Delta regions का मतलब होता है एक ऐसा triangular region, ठीक है, जहां पे बहुत सारी rivers merge होती हैं। वो रिवर्स जहां मर्ज होती है उसे कहते हैं डेल्टा रीजन्स, तो वहां सबसे ज्यादा पानी होता है। या हम कह सकते हैं कि रिवर के या फिर हम कोस्टल एरियाज में भी वी कैन फाउंड सच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग गुजरात कोस्ट, ये हमारे गुजरात कोस्ट के पास है, एंड इन द मार्शी लैंड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट, और ये बे ऑफ बंगाल कोस्ट के जितना भी ऐसा मार्शी लैंड है विच इज फुल ऑफ वाटर और फुल ऑफ मार्शी, वी कैन से समथिंग कीचड़ टाइप, बहुत पानी होता है, ऐसे एरियाज में है। इसके ट्रीज कौन से अवेलेबल है? सी यू कैन फाउंड ओनली सुंदरी एंड शेयर ट्रीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट products and their utility. This is a very important part that
प्रॉब्लम हमारी क्या है पता है मैनकाइंड की, दैट वी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री एरियाज, वी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, बट इवन दो वी आर डिस्ट्रॉइंग देम, फिर भी हम उसे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर भी हम उसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग. जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया दैट द वर्ल्ड इज टुडे, द वर्ल्ड इज फेसिंग वट एवर इश्यूज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरल ये आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल कैलामिटीज, उसमें आप कुछ भी ले लो, राइट. नेचुरल कैलामिटीज में यू टेक अप अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड एवरीथिंग. ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उसका एनवायरमेंटल इम्बैलेंस कर रहे हो, यू आर डूइंग इम्बैलेंस ऑफ एनवायरमेंटल. और वो जब एनवायरमेंट इम्बैलेंस होता है तब ये नेचुरल कैलामिटीज आती है. एनवायरमेंट इम्बैलेंस क्यों होता है, कब होता है, दैट इज बिकॉज के वी आर cutting down the trees, we are deforestation. What we are doing, we are doing deforestation यानी हमने फॉरेस्ट एरियाज को, फॉरेस्ट की जमीन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, राइट, ये सब कुछ अनस्टेबिलिटी फेस नहीं कर पाता, और उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आते हैं. तो नेचुरल कैलामिटीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, बट द रीजंस बिहाइंड दैट कैलामिटीज आर मैन मेड. ओके, चलो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज. सो ये जानना बहुत जरूरी है. हम इंसान या हम ह्यूमन बीइंग कैसे, यू नो, वी मैन और वी मैन मेड, हम जो इंसान है वो लालचू है, वी आर वेरी ग्रीडी, राइट. हम किसी चीज को तभी संभाल के रखेंगे जब हमें उसमें से कोई फायदा मिलता हो. तो फॉरेस्ट आर गिविंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ यूटिलिटी. फॉरेस्ट का बहुत सारा फायदा है जो हमें समझना होगा. Getting, so let's understand it. Forests are useful to mankind in many ways. हर तरीके से फॉरेस्ट हमारे यूज में आता है. आज अगर आप अपने घर पे बैठे हो, यू फाइंड आउट कि ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो फॉरेस्ट में से बनी है. Many products are made out of forest. Okay. So let's learn out. Timber wood from teak and sal is used for furniture making. आपके घर में जितना भी फर्नीचर है जो वुड का बनाया है, ये एक्चुअली टिम्बर वुड कहते हैं इसको. यानी हम फॉरेस्ट में से वुड को काट के लाते हैं, टिम्बर कहते हैं उसे. और वो क्वालिटी कौन सा वुड होता है, वो टीक या साल होता है, फ्रॉम विच यू मेक्स योर डोर्स, योर फर्नीचर्स एंड ऑल सच एज आई हैव शोन यू इन द पिक्चर. ये बहुत ही गुड क्वालिटी फर्नीचर बनाता है, ये गुड क्वालिटी वुड होता है, विच इज फुल ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इसका मेंटेनेंस कम होता है, एंड सो ऑन. Next comes, boats are prepared from the wood of Sundari trees of Sundarban. अब सुंदरवन भी एक जगह का नाम है, ठीक है. सुंदरवन एक जगह का नाम है जहां सबसे ज्यादा सुंदरी ट्रीज होते हैं, राइट. सुंदरवन इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, राइट. यू कैन गूगल इट आउट एंड सी इट. अब सुंदरी ट्रीज, वहां पे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज ग्रो होते हैं. ये सुंदरी ट्रीज इतने ड्यूरेबल होते हैं कि ये यूजुअली बोट्स बनाने में काम आते हैं. बोट्स इसलिए कि बोट्स, यू नो कि बोट्स कहाँ सेल करती है, इट्स कंप्लीटली ऑल द टाइम वाटर में रहती है. अब पानी में कोई भी वुड लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वो वुड सड़ जाएगा, बट सुंदरी ट्रीज ऐसा है जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहता है वाटर में. दैट इज वाई ये बोट्स बनाने के लिए बेस्ट वुड है. Next, sports goods and packing boxes are prepared from the wood of pine and sheet trees. आज जितने भी आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से जो कुछ भी मंगाते हैं, तो जो बॉक्सेस आते हैं, वो बॉक्सेस, यहाँ तक कि आपके जितने भी स्पोर्ट्स गुड्स हैं, राइट, ये सारे किससे बनते हैं, दिस ऑल मेड अप ऑफ पाइन एंड शीट ट्रीज. एज यू कैन सी द सेकेंड पिक्चर, राइट, ये बहुत सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है. Next comes turpentine is prepared from the liquid of tree trees. The third picture you can see, ये ट्री के ब्रांच के अंदर एक टाइप ऑफ लिक्विड होता है, व्हाइट लिक्विड होता है. ये लिक्विड में हम टर्पंटाइन बनाते हैं. टर्पंटाइन इज सच अ टाइप ऑफ ऑयल जो वुड को सड़ने नहीं देता है, ठीक है. So much utilities and products forests are giving us. Let's see more. फिर आता सैंडलवुड इज यूज टू प्रिपेयर परफ्यूम्ड ऑयल, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. सैंडलवुड यानी चंदन,
आप आप अपने स्किन को ब्राइटन करने के लिए चंदन का लेप लगाते होंगे। आप अपने एक एक्ने और पिंपल्स हटाने के लिए चंदन का लेप लगाते हो। चंदन का परफ्यूम भी आप यूज करते हो, सैंडलवुड परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और हर जगह पे आप ये यूटिलाइज करते हो। तो सैंडलवुड, यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर हियर, ये सैंडलवुड की लकड़ियां होती है जिसमें से ये सैंडलवुड वो बहुत ही गुड स्मेल होती है एक्चुअली इसका एंड इसका मेडिसिनली भी बहुत अच्छा यूसेज होता है। Next comes baskets, toys, goods of home decorations, etc. are made from bamboo trees. As you can see the second picture of it, ये जितने भी baskets, toys या ये जो भी आप देखते हो और decorations की जो भी घर की चीजें जो बनती है soft wood में से, that is out of bamboo trees. ठीक है। फिर आता है forest also provide lac, that is sealing, waxing, resin, gum, rubber, honey, can, etc. ये सारी चीजें भी forest हमें provide करता है। ठीक है, जो वेरियस यूटिलिटीज में हम यूज करते हैं। फिर आता है आंवला। आंवला को दूसरा नाम है एम्बेलिसिम रोबलिन। ठीक है, ये जो है आंवला तो हम खाते ही हैं। बाहेडा, हरडे, अश्वगंधा, ये सारे मेडिसिनल यूटिलिटी होल्ड करते हैं, यानी ये मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक मेडिसिनल यूटिलिटी ऑफ वेजिटेशंस का एक टेबल दिया है। लेट्स लर्न आउट कि कौन सी चीज किसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, हम कहते हैं ना घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ यूटिलाइज होती हैं। फर्स्ट कम्स सर्पगंधा। सर्पगंधा इज अ टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। फिर कम्स लिम्बडो, जो यूजुअली हम तड़का लगाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंट है। आप लिम्बडो को पानी में डाल के नहा सकते हो, तो आपको अगर कोई स्किन डिजीज है या स्किन रैशेस है तो वो नहीं होंगे। सो ये आपको हर तरीके के बैक्टीरिया से बचाता है। तुलसी हर एक के घर के आंगन में या गैलरीज में होता है अब, राइट। तुलसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ट्रेडिशनली भी और रिचुअल के हिसाब से भी हम इसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं, हम पूछते हैं इसको। तो तुलसी के आप जो लीव्स है वो खा लो, उससे कोल्ड कफ या फिर जैसे इश्यूज नहीं होंगे। फिर आता है अर्जुन सदाद। अर्जुन सदाद यूजुअली एक हार्ट अलाइनमेंट्स की ट्रीटमेंट में काम आता है। बिली, दैट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑल्सो, ये गैस या कफ इम्प्योरिटीज में काम आता है। गालो, ये सारी चीजें अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जाओगे यू कैन फाइंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है, ये डायबिटीज, फीवर या जॉइंट पेन्स में काम आता है। हर्डे, हर्डे यूजुअली आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक छोटी छोटी गोलियां होती है जो यूजुअली हम खाने के बाद एक एक लेते हैं, राइट, जिससे हमें डाइजेशन में इजी हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और कोई भी हेयर डिजीज में भी ये काम लगता है। और हर्डे बहुत टाइप के होते हैं। ओके, आंवला, आंवला हम खाते ही है। आंवला के बहुत प्लस पॉइंट्स है, जैसे ये गैस के इश्यूज को क्योर करता है, एसिडिटी नहीं होने देता, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाता है। और मैंने जैसे कहा एक्ने, पिंपल या स्किन की कोई डिजीज हो तो भी आंवला इज वेरी गुड। फिर आता है करंज। करंज ये स्किन या डेंटल गम डिजीज के लिए काफी काम आता है। सो दिस आर द मेडिसिनल यूटिलिटीज। सो फॉरेस्ट सिर्फ हमें फर्नीचर्स या वुड या ये नहीं दे रहा, बट इट ऑल्सो गिव्स अस फूड, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल सच, जिससे आज आज तो हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, बट सालों से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को इन इन मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प से ही सॉर्ट आउट किया गया है। ओके, besides, leaf plates from khakro leaves, katachu from kher tree, bidi from timru leaves are also prepared. Students, इस चैप्टर में से you will found numbers of MCQs, so make sure, जैसे MCQs में आ सकता है कि खाखरो लीव्स किसके लिए काम आता है, तो वो लीफ प्लेट्स के लिए, जो हम आपने देखा होगा कि बहुत पहले के स्टाइल में या साउथ में आज भी एक लीफ प्लेट होती है जिसमें खाना दिया जाता है, राइट, तो वो खाखरो लीव से बनती है। फिर कटैचू किससे बनता है, कटैचू बनता है खेयर ट्रीज में से। बीड़ी, बीड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, अगर किसी कोई आपके घर में एल्डर ऐसा कोई है जो बीड़ी पीता हो, तो वो जो ऊपर का जो है वो एक टाइप्स ऑफ लीव होता है जो टिमरू लीव से आता है, राइट। सो यू कैन फाउंड अ लॉट, आई कैन से के सॉल्यूशंस ऑफ दिस। आई एम फाइंडिंग कटैचू क्या है,
अगर मिल जाता तो लेट मी टेल यू, लेट मी सी द इमेजेस। कटैचू बैटर मुझे समझाने में डिफिकल्टी होगी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। बेटर यू जस्ट गो थ्रू, आप गूगल करो एंड यू विल फाइंड आउट कि कटैचू कैसा दिखता है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ओके, यस, यू जस्ट गो थ्रू, गूगल इट आउट एंड फाइंड आउट कि कटैचू क्या है और ये किस में से बनता है। फाइन, चलो। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड एंड फूड टू फॉरेस्ट dwellers। यहाँ तक कि फॉरेस्ट लाइवलीहुड भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एनिमल्स को ले लो, एनिमल्स को ग्रास चाहिए, ये वो चाहिए, तो दिस फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और यहाँ तक के फूड टू फॉरेस्ट dwellers, राइट, वो खाना भी देता है, उन हर एक की लाइफ को भी रन कर रहा है। These way forests contribute into the social and economic development of mankind. So ये ऐसे तरीके हैं जिससे, या इस हद तक फॉरेस्ट ने हमें कंट्रीब्यूट किया है, राइट, इतनी सारी चीजें दी है फॉरेस्ट ने हमें, जिससे हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा होता रहे इंसान का, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। चलो, ये तो हमने देख लिया कि हमारे फायदे क्या है, मैनमेड को इससे फॉरेस्ट से क्या फायदे मिल रहे हैं, ये हमने देखा। बट इसके अलावा हमारे एटमॉस्फियर को, हमारे एनवायरमेंट को क्या फायदे होते हैं फॉरेस्ट से, अब हम वो स्टडी करेंगे। The environmental importance of forests is as follows. Forests are useful to bring rain. As you can see in the picture I have given, we all know the rain cycle, right? So हम ज्यादा से ज्यादा trees या forest grow क्यों करते हैं? ये हम बचपन से, I think second standard से पढ़ते आ रहे हैं कि trees brings rains, right? So forest बारिश लाने में हेल्प आउट करते हैं, तो जिससे दूसरा फायदा क्या होगा कि डेजर्टी एरिया, जो सूखापन, जो ड्रॉट इश्यूज बढ़ता जा रहा है, वो सूखापन रुक जाएगा। प्लस वी ऑल नो दैट रेन कितनी इंपॉर्टेंट है इन एग्रीकल्चर पर्पस, राइट। जमीन को चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, एवरीबडी रिक्वायर्स रेन। We all know the importance of it. Okay, so forest brings such a very important thing, that is rain. They control the atmosphere from becoming adverse. अगर बारिश नहीं तो atmosphere adverse हो जाएगा, temperature overly high हो जाएगा and it would be very difficult to survive. तो adverse, ये जो एटमोस्फियर को वो कंट्रोल करके रखता है, रेन एज वेल एज फॉरेस्ट, ये दोनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। गेटिंग, रेन से ही फॉरेस्ट ग्रो होता है और फॉरेस्ट से ही रेन आती है, ठीक है। सो दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वी कैन से। तो जो भी एडवर्स कंडीशन, जैसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन इस हद तक हमने किया है कि जिसकी वजह से रेन आज टाइम टू टाइम नहीं आ रही, और जिसकी वजह से बहुत ही एडवर्स एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स वी वर फेसिंग। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन। यस, फॉरेस्ट या ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मैनकाइंड। ओके, फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स। फॉरेस्ट फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि अगर रिवर के आसपास या ऐसे कोई भी स्ट्रीम्स के आसपास आप अगर जितने ज्यादा उतने फॉरेस्ट या ट्रीज ग्रो कर लो, उससे क्या होगा कि जब भी फ्लड्स इश्यू होगा या ओवर फ्लड कब आता है, अगर मैं बोलूं कि एक बाल्टी में आप नल चालू कर दो तो बाल्टी में जितनी जगह होगी उतना पानी आ जाएगा, बट उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सो फ्लड्स इज समथिंग ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो वो ओवरफ्लो की कहाँ जाएगी, किनारे के आसपास या उसके आसपास के एरियाज में। अगर वहां पे ट्रीज आपने ग्रो की है तो ट्रीज वो सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा, और जिसकी वजह से बहुत इजीली फ्लड्स कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। They absorb harmful gases like carbon dioxide. ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, वो आज अगर टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है, आज 50 डिग्रीज तक अगर जा रहा है टेम्परेचर, तो उसका कारण ये है कि आज इतनी इंडस्ट्रीज और ये सब है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे बहुत सारे गैसेस है जो रिलीज कर रहे हैं, जो जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो हमसे ले लेता है ट्रीज
कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एग्रीकल्चर में। आज जमीन है बट जमीन में फर्टिलिटी ही नहीं है, जमीन फर्टाइल नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो उसमें से कुछ उगेगा नहीं, राइट। तो सॉइल क्या फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल को खराब होने से, सॉइल की फर्टिलिटी को खोने से बचाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा ज्यादा फॉरेस्ट उतनी ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी रहेगी और उतना अच्छा एग्रीकल्चर होगा। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जब फ्लड आता है तो फॉरेस्ट क्या करता है या ट्रीज क्या करता है, पूरे उस पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑब्जॉर्ब करके वो डालता क्या है, वो जमीन के नीचे का जो पानी का स्तर है वो बढ़ाता है, राइट। तो हम ये जो कुएं और वो सब करते हैं, वो वहां से पानी कहाँ से हम डालते हैं, वहां नहीं, वो नेचुरली जमीन के नीचे का जो पानी होता है, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होगा। तो हमें जो पानी की दिक्कत हो रही है वो कभी हम फेस नहीं करेंगे। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एडवांसिंग डेजर्ट, ये मैंने पहले ही बताया कि अगर फॉरेस्ट्री एरियाज है तो कभी भी डेजर्ट्स जैसी चीज होगी ही नहीं, राइट, या कम होता जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल को इरोड होने से बचाता है। तो फर्टिलिटी रहेगी तो हर जगह पे आप जो चाहो वो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। दूसरी बात, फॉरेस्ट क्या करता है, अगर आप अपने आसपास अपने एरियाज में भी अगर कहीं ऐसा एक एरिया देखो कि जहां ट्रीज ही ट्रीज है, आप देखोगे कि वहां से आप गुजरोगे तो आपको एक ठंडक मिलेगी, राइट, आपको टेम्परेचर बहुत कम दिखेगा, प्लस आपको वहां की हवा बहुत फ्रेश होगी, फील होगी, पॉल्यूटेड फील नहीं होगा। क्यों? अगर इतने छोटे से एरियाज में इतने कम ट्रीज में अगर आप ये सब फील कर सकते हो, तो यू जस्ट इमेजिन के फॉरेस्ट होने से ये जो एयर पॉल्यूशन की दिक्कत जो हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, अस्थमा एंड ऑल सच, लंग्स इश्यूज एंड सब कुछ हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये किस हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। फॉरेस्ट एनहांस द नेचुरल ब्यूटी। दूसरा, यू कैन सी इन द पिक्चर, इट एनहांस द नेचुरल ब्यूटीज। ये बहुत ही, हम यूजुअली आज ऐसी जगह ढूंढते हैं, हम घूमने जाते हैं ऐसी जगह पे जहां फॉरेस्ट हो, ट्रीज हो, कलरफुल प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, जिसकी और दूसरा, फॉरेस्ट की वजह से ऐसे नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो, ठीक है। सो फॉरेस्ट क्या करता है, नेचुरल ब्यूटी को और भी बढ़ावा देता है। फॉरेस्ट प्यूरिफाइज द एयर, ये हमने आगे पढ़ लिया। प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ। एक्चुअली आज हम टीवी में बहुत सारे न्यूज देखते हैं कि आज लायन ने किसी किसी विलेज में आ गया और किसी को मार डाला, राइट, या चित्ता कहीं पे, लेपर्ड कहीं पे घुस गया है किसी विलेज में, लोगों को परेशान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज हमने उनके घर छीन लिए हैं। फॉरेस्ट उनके घर है, वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड एनिमल्स के वो उनके घर है। अगर वो हम छीन लेंगे तो ऑब्वियस उन्हें कहीं तो जाना होगा, और वो कहाँ आएंगे? हमारे पास, ठीक है। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्सेट्रा। ये जगहों पे मैंने जैसे कहा कि हम घूमने जाते हैं, हम एडवेंचर करने जाते हैं, राइट। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटीज। एज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ हियर, ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जिसे रिजर्व्ड किया गया है नेशनल पार्क की तरह से, जहां एनिमल्स फ्रीली अपनी जिंदगी एक फॉरेस्ट्री एरिया में भी बिताते हैं, प्लस वहां ह्यूमन बींग्स भी कहीं कहीं जा सकते हैं। नेशनल पार्क से सेंचुरीज है, बायोडाइवर्सिटी, तो हमारी अब ये कोशिश होती है कि हम इन वाइल्ड एनिमल्स को बचाए रखें, उनको एक्सटेंट होने से बचाएं। जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिसकी हमारी अनअवेयरनेस की वजह से, राइट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं आज भी जो एंडेंजर्ड है, जैसे लायंस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले थे, राइट। ये वर्ल्ड में, इंडिया में आई थिंक सबसे ज्यादा गिर में है लायंस, ओके। तो हम उसे बचा के रखें, उनकी उनकी स्पीसीज को हमें बचाना है, राइट। सो इसीलिए ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब कुछ किया गया है, ठीक है। सो लेट्स एंड द चैप्टर हियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि सी, हम कहते हैं कि लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, बट इसकी शुरुआत हमसे होती है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक तो हम ट्रीज या ये सब को काटने से रोकें, प्लस जितना हो उतना हम ट्रीज ग्रो करें, हम प्लांट्स ग्रो करें अपनी गैलरीज में, अपने पैसेज में, आप जहां रहते हो वहां जितने हो उतने आसपास अपने ट्रीज ग्रो करें, तो इट वुड रियली हेल्पफुल एटलीस्ट योर एरिया। और धीरे धीरे एक सिटी, एक एरिया डेवलप्ड होता जाएगा, पॉल्यूशन कम होता जाएगा, यू विल फाइंड कि काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
सो किसी ना किसी को इसकी शुरुआत करनी होगी, एंड वी शुड ऑलवेज थिंक दैट वी शुड start it first. Okay, so hope you understood it well. We'll meet in the next lecture with the same topic. Up till bye bye, take care all of you.